Hello friends, our today's topic, that is a refraction. Okay, so what is the meaning of refraction? So meaning of refraction, that is a when ray travel from one medium to another medium, then it is a slightly deviated, right? So this phenomena is known as refraction. For example, here suppose we consider it is a surface, a ray is incident on it, right, and here it is a slightly deviated. Okay, so this phenomena is known as refraction. It is a normal. Suppose there is a no medium, then this ray moving straight. अगर कोई भी मीडियम नहीं होता तो ये रे जो है हमारा वो स्ट्रेट चला जाता, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इट इज़ अ स्लाइटली डेविएटेड. ओके फ्रेंड्स, सो हियर you can say here that PQ is a incident ray and QR that is a refracted ray and R dash. Okay, so here you can say theta 1 is the angle of incident and theta 2 is the angle of refraction and delta is the angle of deviation. Okay, you can say MN is a normal drawn. It is medium 1 having a refractive index eta 1. You can say it is a medium 2 having refractive index eta 2, right. So here we can say AB is a boundary which separate this two medium. Okay, now laws of refraction. Laws of refraction. First law, that is PQ, that is the incident ray, QR refracted ray and MN that is equal to normal drawn. These are all in same plane. Second law, let theta 1 that is equal to angle of incident and theta 2 that is equal to angle of refraction. Then the ratio of their sign is remain constant, that is sin theta 1 to sin theta 2 is remain constant, right. So this phenomena or this statement is known as Snell's law. This statement is known as Snell's law. So what is the Snell's law? So eta 2 1 that is a constant, that is the eta 2 upon eta 1, that is equal to sin theta 1 upon sin theta 2. Therefore you can say eta 1 sin theta 1 is equal to eta 2 sin theta 2. This statement is known as Snell's law. Okay friends, now एक है that is the absolute refractive index. Absolute refractive index, you can say it is a eta. So here what is the absolute refractive index? That is the refractive index of any medium with respect to refractive index of vacuum is known as absolute refractive index. It is denoted by eta. अब eta को C upon V से भी डिनोट कर सकते हो. What is the eta? Eta is equal to C upon V. What is the C? C, that is a speed of light in
vacuum, and v, that is equal to speed of light in medium, right? So here eta is equal to c upon v. Therefore, what you can say, eta 1 is equal to c upon v1 and eta 2 that is equal to c upon v2. Therefore, eta 21 that is a eta 2 upon eta 1 that is equal to c upon v2 into c upon v1. So, c get cancelled, that is you can say v1 upon v2. Therefore, you can say eta 21 that is the eta 2 upon eta 1 that is a v1 upon v2 that is equal to sin theta 1 upon sin theta 2. Okay. Therefore, eta 1 sin theta 1 is equal to eta 2 sin theta 2. Therefore, eta sin theta is remain constant. Okay. So, it is nothing but it is a proof of Snell's law. It is a proof of Snell's law. Okay friends. So, it is a Snell's law. Okay. अब सेकंड थिंग कि सपोज हमारा रेज है वो रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम एंड डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगा, राइट? तो ये सिचुएशन में क्या होगा, सो वो देख लेते हैं. सो हियर we can say according to Snell's law eta sin theta is remain constant. Okay. So, as theta is very small, therefore, sin theta is nearly equal to theta. Therefore, eta theta is remain constant, right? That implies you can say theta is inversely proportional to eta. What you can say, theta is inversely proportional to eta. चलो केस 1 लेते हैं. दैट इज सपोज आवर ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू dense medium. Okay, so rare medium to dense medium, so you can say eta 1 is less than eta 2. That implies theta 1 is greater than theta 2. Why? Because theta is inversely proportional to eta. What you can say, theta is inversely proportional to eta. That is here we can say theta 1 is greater than theta 2. That means when ray travels from rare medium to dense medium, so theta 1 is greater than theta 2. Okay. That means here we can say it is theta 1, it is theta 2. That is, it is moving towards the normal. It is moving towards the normal. Okay. Why? Because here theta is inversely proportional to eta. Case 2, that is when it travel from dense medium to rare medium, that is eta 1 is greater than eta 2. Dense medium to rare medium, eta 1 is greater than to eta 2. So, theta 1 is less than theta 2. Okay. Here theta 1 is less than theta 2. So, in this case we can say that it is like this. Okay. Suppose it is a incident ray and it is refracted ray. Okay. So, here you can say incident ray, refracted ray, theta 1 it is a theta 2, theta 1 is less than theta 2, that is moving away from the normal, moving away from normal. Okay friends, so by this way we come to know that when it move from rare medium to dense medium or dense medium to rare medium, then what happened.
Okay, now next topic, that is a lateral shift. So what is the meaning of lateral shift? So have you observed के suppose कोई एक पानी का ग्लास है, वो पानी के ग्लास में आपने अगर कोई भी पैन को सिंक करते हो, दैट इज पार्शियली, पूरी नहीं, तो वो थोड़ी सी एक लाइन में नहीं दिखेगी, थोड़ी सी कट होती दिखेगी. सो दिस हैपन ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ओके, अब रिफ्रैक्शन में ही एक आता है लैटरल शिफ्ट. मतलब अगर सेम वे कि वही ग्लास भरा हुआ पानी है और अंदर आप एक कॉइन डालते हो, तो कॉइन जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखा देगा आपको, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, राइट. सो जो ऊपर दिखाई देता है, जो उसकी शिफ्ट होती है, उसको हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट. व्हाट यू कैन से, सो यू कैन से इट इज अ लैटरल शिफ्ट. ओके, सो हियर एग्जैक्टली व्हाट इज अ लैटरल शिफ्ट, दैट विल सी कि फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये एक स्लैब है. ओके, एंड हियर वी कंसीडर इट इज़ अ इंसिडेंट रे. अगर कोई भी कुछ भी नहीं होता है तो वो स्ट्रेट वे चला जाएगा. ओके, बट ड्यू टू द मीडियम, यहाँ पर वो जाएगा rare medium to dense medium, that is it is moving towards the normal, and dense medium to rare medium it is moving away from the normal. okay, so ये रहेगा एग्जैक्टली उसका पाथ. और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, राइट, तो हमें रिफ्रैक्शन पता चले. तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट से यहाँ खींचते हैं, ओके, तो इतना जो है वो हमारा शिफ्टिंग होता है. सो इसको हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट. व्हाट यू कॉल इट एज अ लैटरल शिफ्ट. चलो देख लेते हैं. दैट इज एग्जैक्टली पाथ, दैट इज अ पी क्यू आर एस. ये इसका पाथ है. अगर कुछ भी नहीं होता तो उसका पाथ होता पी क्यू आर डैश एस डैश. ओके, बट हियर due to it is you can say air, so refractive index is eta 1, glass refractive index eta 2, and once again air refractive index is eta 1. okay, you can say it is a air, you can say it is a glass, and once again you can say it is a air. So when it travel from air to glass, that is it is rare medium to dense medium, so QR is moving towards the normal, जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, and glass to air, that is a dense to rare, then it is a moving away from the normal. okay, so here we can say that this R n, that is equal to x. so Rn is equal to x, so Rn is equal to x is known as lateral shift. okay, that is in place of R we can see object at the position of n. okay, तो ये जो लिफ्ट होता है उसको हम कहेंगे lateral shift, right friends. so it is phenomena that is known as lateral shift. next point कि suppose ये हम कंसिडर करते हैं एक लेक या तालाब, ओके, के अंदर एक फिश है. ओके, और वो फिश को ऑब्जर्व कर रहा है कोई एक ऑब्जर्वर, राइट. तो यहाँ पर सपोज कोई एक रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, और यहाँ पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो उसको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा. okay, now just focus here. suppose यहाँ पर ये एक fish है. okay, so fish is a object, right. तो रे जाएगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो एग्जैक्टली फिश यहाँ पर है. ओके, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, बट जो ऑब्जर्वर है उसकी टेंडेंसी होगी स्ट्रेट वे देखने की. सो इन प्लेस ऑफ
you can say P, it's C object here. Okay, तो ये है उसकी apparent depth and it is a real depth. Okay, तो ये क्या है इसकी real depth और ये है इसकी apparent depth, right? So in place of this you can see object at this point, right? In place of P you can observe at P dash, बराबर. तो ये होगा एक केस. दूसरा एक केस कि सपोज सेम वे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा ऑब्जर्वर. ओके, अब हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं. ओके, उल्टा कैसे कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे ऑब्जर्वर और जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट. दैट इज इट इज लाइक दिस कि फिश हमारी जो है वो है ऑब्जर्वर. सपोज ये फिश है, इट इज ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट, राइट. तो रह जाएगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर, बट इसकी टेंडेंसी रहेगी स्ट्रेट वे देखने की. तो यहाँ पर उसको एपरेंट दिखाई देगी. इट इज़ अ रियल बट ये दिखाई देगी यहाँ पर, दैट इज़ अ एपरेंट. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इजी सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ कि ये आपको याद रखना है. दैट इज़ HI/HO, दैट इज़ ईटा ऑब्जर्वर टू ईटा ऑब्जेक्ट, राइट. ये आपको याद में रखना है. ये आपका बहुत ही कॉमन इक्वेशन है. दैट HI/HO, दैट इज़ ईटा ऑब्जर्वर टू ईटा ऑब्जेक्ट, बराबर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस HI/HO, दैट इज ईटा ऑब्जर्वर टू ईटा ऑब्जेक्ट. अब एक केस ऐसा है और एक एग्जांपल कुछ इस तरह से है. तो ये एग्जांपल में क्या है, अ मैन डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, अ मैन डाइविंग इन स्विमिंग पूल with speed 2 meter per second. What is the speed? What is a speed observed by fish which is inside a pool, right? ये आपको फाइंड करना है. एंड हियर गिवन दैट ईटा फॉर एयर दैट इज इक्वल टू 1 एंड ईटा फॉर वाटर दैट इज अ 1.33, बराबर है. अब यहाँ पर हियर टू क्लियर इट आउट कि ऑब्जेक्ट कौन है. सो ऑब्जेक्ट है हमारा, दैट इज अ मैन इज अ ऑब्जेक्ट एंड फिश इज अ ऑब्जर्वर. फिश क्या है, ऑब्जर्वर. और ऑब्जर्वर कहाँ पर है, पानी में, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एयर में, राइट. सो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला है दैट HI/HO दैट इज इक्वल टू ईटा ऑब्जर्वर. व्हाट इज द ईटा ऑब्जर्वर अपॉन ईटा ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द ईटा ऑब्जर्वर? ईटा ऑब्जर्वर दैट इज अ 1.33 एंड ईटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एयर में, दैट इज अ 1. देयरफॉर यू कैन से HI इज इक्वल टू 1.33 HO. ओके, अब यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम. दैट इज अ DHI/dt दैट इज अ 1.33 DHO/dt. नाउ DHI/dt दैट इज अ VI दैट इज अ 1.33 VO. That is equal to 1.33. And what is the VO? That is the velocity of the object, that is a 2. So your answer is 2.66 meter per
second. Okay, so it is like this. Okay friends, so it is a one of the very important topic, बराबर, that is a refraction. Okay, अब रिफ्रैक्शन में ही एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ओके, टोटल इंटरनल refraction. Okay, so exactly what is the total internal reflection? So for example यहाँ पर हम consider करते हैं एक glass slab. Okay, या फिर कोई भी आप मीडियम कंसीडर कर सकते हो, एंड आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस हियर, बराबर है. अब यहाँ पर एक रे जा रहा है स्ट्रेट में, राइट. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट. सो हियर वी कैन से O is a object and you can say P is a point. So no refraction, no reflection, straight way निकल जाएगा. No reflection, no refraction. चलो, as I increase my angle of incident, बराबर, यहाँ पर मैंने angle of incident है उसको increase किया. Okay, so here I observe this two phenomena, that is a partial refraction and partial reflection. कहाँ पर? P dash point पर. Okay, चलो फिर से मैंने angle of incident को increase किया. Okay, so once again I observe the same two phenomena, that is a partial reflection and partial refraction friends. Okay, यहाँ पर मैंने दो phenomena observe किए, that is a partial refraction and partial reflection. Okay, now just see here, okay, what is the difference between point P dash and P double dash. यहाँ पर मुझे दो फिनोमेना मिलते थे, that is a partial refraction and partial reflection. बट यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और ये होगी डिक्रीज, बराबर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P टू P डैश. मतलब आप P से P डबल डैश की तरफ जाते हो तो रिफ्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा और रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होगा. ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि जहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस रिफ्रैक्टेड रे मूविंग पैरेलल टू द सरफेस. क्या होगा कि आपका रिफ्रैक्टेड रे मूविंग पैरेलल टू द सरफेस, और वो जगह पर जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, दिस रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज क्रिटिकल रे. ये रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या कहेंगे? दैट इज द क्रिटिकल रे. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज critical angle. What? The angle of incident is known as critical angle. Okay, तो ये एंगल को हम कहेंगे critical angle. Angle of incident is equal to angle of reflection, और ये एंगल होगा 90 डिग्री, बराबर. ये है eta1 that is equal to 1 that is for air and eta2 that is the eta for medium. तो अगर मैं यहाँ पर P ट्रिपल डैश पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, सो eta1 साइन θ1 इज इक्वल टू eta2 साइन θ2. चलो eta1 क्या है? 1 साइन θ1 दैट इज अ साइन 90, eta2 दैट इज अ eta साइन c. देयरफॉर
eta sin c is equal to 1, therefore sin c is equal to 1 upon eta, or you can say eta is equal to 1 upon sin c, right? तो ये हो गया आपका एक पॉइंट और इक्वेशन फॉर द केस ऑफ क्रिटिकल. किसके लिए होगा ये? क्रिटिकल. नाउ व्हाट इफ योर एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल? अगर हमारा एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, फिर होगा खाली रिफ्लेक्शन. क्या होगा? ओनली रिफ्लेक्शन. ओके, नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, ओनली रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. ओके, सो ये जो फिनोमेना है उसको हम कहेंगे TIR, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये फिनोमेना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट फ्रेंड्स? सो इट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो उसकी एप्लीकेशन और यूजेस में the first one that is a mirage formation. what is the mirage formation? कि समर में जब भी हम ड्राइविंग करते हैं या फिर डेजर्ट में जाते हैं तो हमें लगता है कि दूर पानी जैसा कुछ है, बट जैसे हम वहाँ पर नज़दीक में जाते हैं तो पानी पानी कुछ नहीं होता है. दैट इज़ वो हमें भ्रम होता है कि वो पानी है, बट एग्जैक्टली पानी पानी कुछ नहीं होता है. तो देखते हैं कि मिराज किस तरह से फॉर्म होता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा रोड. ओके, और सपोज यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल सपोज हियर वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट हियर, राइट? अब समर में क्या होगा? रोड है वो हीट होगा. ओके, सो जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब रोड से ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. मतलब ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर पर जाएगा, सो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इट रीच टू ऑब्जर्वर. बट ऑब्जर्वर की टेंडेंसी होती है स्ट्रेट वे देखने की, तो ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देना चाहिए, बट रॉड ओपेक है तो ये पोजीशन है यहाँ पर जस्ट लाइक अ मिरर दिखाई देगा उसको, राइट? दैट इज जस्ट लाइक अ वाटर. ओके, मिरर मतलब वाटर जैसा दिखाई देगा. सो दिस फॉर्मेशन इज नॉन एज मिराज फॉर्मेशन. ओके, सेकेंड वन है दैट इज अ डायमंड. सो व्हाट इज अ और व्हाई डायमंड? सो डायमंड के केस में द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, दैट इज विथ प्रॉपर कटिंग ऑफ द फेज ऑफ डायमंड द लाइट एंटर द क्रिस्टल suffer multiple total internal reflection and hence it look bright from inside and we call the diamond is sparkling. Okay, so here the critical angle for diamond is 24.4 degree. What is it? 24.4 degree. Remember it, it is very useful for MCQ purpose, and its refractive index eta is a 2.42. Okay, so sparkling of diamond is due to total internal reflection, and second one that is a optical fiber. Okay, so optical fiber में क्या होता है कि ध्यान से देखो कि फॉर एग्जाम्पल ये है कोई एक ऑप्टिकल फाइबर. ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर मेड फ्रॉम ग्लास और फ्यूज क्वार्ट्स में से बना होता है. ओके, अब यहाँ पर हम कोई भी एंगल पर
और कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर रे को इंसिडेंट करते हैं, देन इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, मतलब अगर 1 मीटर लेंथ है सो 100 ऑफ टाइम इट स्ट्राइक विद द बाउंड्री, ये बाउंड्री के साथ 100 ऑफ टाइम स्ट्राइक होगा। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ लीकेज। ओके, तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर दूसरा एक लेयर चढ़ाते हैं, राइट। सो ये जो दूसरा लेयर चढ़ता है, वो जो दूसरा लेयर है, दिस लेयर इज नॉन एज क्लैडिंग, क्लैडिंग डन ओवर दिस ऑप्टिकल फाइबर। ओके, सपोज ये जो हमारा ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼1 है और जो क्लैडिंग किया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼2 है। सो 𝜼2 इज लेस देन 𝜼1, 𝜼2 इज लेस देन 𝜼1, मतलब ये जो ग्लास है उसका हाई होगा और क्लैडिंग वाला जो मटेरियल है इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। और इसकी वजह से जो लीकेज है वो नहीं होगा, राइट। सो इट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, फिर उसके यूजेस है दैट ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट and receiving electrical signal which are converted to light by transducer. It can also be used for transmission of optical signals as decorative lamp with fine plastic fiber with their free end forming a fountain structure. The other end of a fiber is fixed over an electric lamp. Fourth one, it can also be used in medical field as an endoscopy method for viewing the human lung, stomach and intestine. And fifth one, that is the optical fiber are extensively used for transmitting audio and video signal through a long distance, right. So यहाँ पर 2 मार्क्स का एक ऑफबिट क्वेश्चन आ सकता है, that is write a note on optical fiber. 2 मार्क्स का क्वेश्चन, it is one of the very important ऑफबिट क्वेश्चन है, that is write a note on optical fiber. तो आपको ये पूरा लिखना है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट।